affinity. So you go to full page view. Now, so ये हमारा आ गया. चलिए, so respiration. Now, actually क्या है? In case of your hemoglobin, what did we see? We saw that there are dual affinities. Dual affinities का मतलब क्या है? That they have affinities for both hemoglobin as well as oxygen as well as carbon dioxide. तो वो दोनों के लिए उसके affinities हैं. ठीक है? And that is the same thing that we regarded. And अगर dual affinities हैं, so there has to be conditions in which one will be promoted, and there has to be conditions where the other will be promoted. है कि नहीं? Yes sir. चलिए, तो इसीलिए तो अब हम लोगों ने क्या देखा? That how to increase oxygen affinity by binding potassium, and how to increase CO2 affinity by binding protons. तो जैसे आपका प्रोटॉन बाइंडिंग होगा वो आपका CO2 एफिनिटी बढ़ाता है, एंड जैसे हमारा पोटेशियम बाइंडिंग होगा तो वो आपका O2 एफिनिटी बढ़ाता है. Okay, and that is why we have already discussed that oxygen and carbon dioxide, they are not competitive dash inhibitors. है कि नहीं? Allosteric. Yes. Why they are not competitive Yes. inhibitors? Because they don't bind to the same site. They Same don't site. bind to the oxygen, your active site of the enzyme. Here what happens? They bind to different sites. तो O2 बाइंड करने से CO2 को अफेक्ट करता है, and CO2 बाइंड करने से O2 को अफेक्ट करता है. Okay, so that is the case. Now, तो this is the same thing that has been done. तो इसलिए lungs में क्या होता है? Normal conditions में lungs जो promote करता है, because there is high partial pressure of oxygen. When there is high partial pressure of oxygen in the lungs, तो what happens? We will see that आपका वहाँ क्या होगा? पोटेशियम जनरेशन होगा. हम देखेंगे जब हम लोग करेंगे CO2 ट्रांसपोर्ट. एंड टिश्यूज में आपका H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, तो वहां प्रोटॉन ज्यादा होगा. इसीलिए अगर आपको पूछा जाता है जैसे हाउ टू नो या हु इज कंट्रोलिंग रेगुलेशन, तो रेगुलेशन कैसे कंट्रोल होता है? बाय एडिंग प्रोटॉन्स, है कि नहीं? तो जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगा. Yes. जैसे एसिडिटी बढ़ेगा आपका CO2 ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, and etc etc. So all these things we will see in due course of time. तो इसीलिए the binding of O2 and CO2 depends upon association of proton ions, potassium ions to the heme part. Okay, HHB होने से वो CO2 affinity बढ़ाता है, KHB होने से वो O2 affinity बढ़ाता है. And these things we will discuss in gas transport. ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है. हमने देख लिया था that एक हीम में 4 pyrrole rings होते हैं which are joined to a central atom that is called what? Iron. तो वो central atom iron के साथ attached होता है, and ये जो central atom iron है तो इसमें आपका 2+ चार्ज होता है. So that is called your ferrous ion. तो since the color of ferrous is red, तो आपका हीमोग्लोबिन भी रेड कलर का होता है. रेड कलर. इसलिए रेडिश कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू आयरन ओनली. नाउ देयर आर डिजीजेस लाइक मिथ हीमोग्लोबिनेमिया. तो मिथ हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक, तो इसलिए वहां ग्रीनिश कलर का हो जाता है ब्लड. अंडरस्टूड? तो बट इन रेगुलर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कलर डज नॉट चेंज. तो इसका मतलब क्या है? That nothing is happening to the ferrous. So ferrous remains ferrous. इसलिए O2 plus हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, not oxidation. Oxidation. So we Yes, don't sir. call it oxidation. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है,
तो इधर हम लोग लिख सकते हैं वो पॉइंट। तो while the association of oxygen with hemoglobin, there is no change. Okay, No there is oxidation no number. change to the oxidation number of Fe2 plus. ओके, तो इसलिए Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, हेंस दिस फिजियोलॉजी is referred to as oxygenation and not oxidation। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्सीजनेशन बोलेंगे एंड ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो इधर हम एक ग्रीन पॉइंट लिख सकते हैं। So we will write a green point here that in case of methemoglobinemia, okay, methemoglobinemia, उसमें क्या होता है? The Fe2 plus, okay, of, in case of methemoglobinemia, the Fe2 plus of heme changes or oxidizes to what? Fe3 plus 3 plus. of methemoglobin। ओके, तो इसको methemoglobin बोलते हैं। Now this is referred to as oxidation of hemoglobin। ठीक है, this is referred to as oxidation of hemoglobin। समझ में आया? तो इसीलिए जो मीथहीमोग्लोबिनेमिया में क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसलिए वो प्रॉब्लम भी करता है। और क्या, तो उसमें फिर दैट इज ए प्रॉब्लम। तो इट इज अ डिसऑर्डर इन विच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज फंक्शनली ऑल्टर्ड, ओके, एंड दैट इज व्हाई उसका जो कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन इज अफेक्टेड। तो जो कैरिंग है ऑक्सीजन का वो आपका अफेक्ट हो जाता है। तो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, उसमें मैं आपको उसका फोटोग्राफ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। किसी किसी में ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ओके, एंड किसी किसी में ये बाद में भी हो सकता है। अगर पॉल्यूटेंट्स हैं तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दैट में आल्सो नाइट्रेट एंड एटसेट्रा, दे में आल्सो कॉज व्हाट, दे में आल्सो कॉज मीथहीमोग्लोबिनेमिया। इसका वो क्योर है कुछ इसका? वो तो आप डॉक्टर्स को पूछेंगे, दैट विल आस्क आत्मन्स फादर, नॉट मी। आप लोग कभी कभी भूल जाते हो ना, दैट आई एम जस्ट ए टीचर, आई एम नॉट ए डॉक्टर। सो हम लोग सिर्फ आपको डिजीज का कॉज पढ़ाते हैं, उसका सिम्टम ज्यादा रट के पढ़ा लेंगे, बड़ा वो कैसे क्योर करना है वो सब एटसेट्रा, तो वो तो वही बताएंगे ना। तो उसमें सायानोसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। व्हाई इट इज बिकमिंग सायन, ब्लूइश या ग्रीनिश? इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? मीथहीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज, क्योंकि फेरिक आयन का कलर क्या होता है, वो समवार ग्रीनिश ब्लूइश होता है। ओके, सो Bluish green. Yes sir. तो समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। चलिए, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउ हाँ बोलिए। सर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लूइश दिखते हैं, और वो ब्लड भी कहते हैं कि डार्कर शेड होता है, तो नहीं, वो क्या तो किसी वे में इससे रिलेटेड है? नहीं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो जो वेन्स है, तो वेन्स का कलर डार्कर होता है एंड जो आर्टरीज का कलर रेड होता है। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो उसमें जो CO2 का कंसंट्रेशन है, तो इट मे बी वन ऑफ द कॉज ऑफ साइनोसिस, नो डाउट। जो नीला सर ये ब्लड वो पड़ता ब्लू है, बेबी सिंड्रोम में होता है ना? ब्लू बेबी तो अलग सिंड्रोम है, उसमें
अदर एस्पेक्ट्स होता है। सो वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस बारे में आई विल डिस्कस। ओके, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज डिफरेंट क्योंकि उसमें आपका चार चार प्रॉब्लम्स होता है। सो दैट इज बेसिकली कॉज दैट इज कॉल्ड टेट्रालॉजी ऑफ फैलार। तो वो जब हम पढ़ेंगे अब उसको यहाँ वो हम लोग बेसिकली सर्कुलेशन में डिस्कस करेंगे, नॉट हियर। ओके, चलिए। सो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, दैट हीमोग्लोबिन हैज 4 sites of O2 बाइंडिंग, है कि नहीं? उसके पास 4 आयरन है तो उसके पास 4 साइट्स ऑफ O2 बाइंडिंग है। तो हीमोग्लोबिन हैज 4 sites of O2 binding. It is already associated with CO2. ओके, तो जनरली उसमें 4 O2 बाइंडिंग साइट है एंड सपोज उसने O2 बाइंड नहीं किया हुआ है तो वो ऑलरेडी किसके साथ अटैच्ड है? वो ऑलरेडी अटैच्ड है CO2 के साथ। CO2 के साथ। Therefore, in such condition, it has no affinity for क्या? ऑक्सीजन। समझ रहे हो? तो वो ऑलरेडी CO2 को बाइंड करेगा, करा हुआ है, तो उसके पास ऑक्सीजन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 होता है। बट ओके, तो ये कहाँ होगा? It is already associated with CO2 in tissues, यहाँ लिख लेते हैं और क्या ना, in tissues it is already associated with CO2 हो गया। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अब when this क्या कार्बामिनो hemoglobin enters into lungs, क्या होगा? PCO2 level PCO2 is क्या? Lower Low. Yes. Yes, sir. and PO2 is higher. High. Okay, so in these changed conditions, okay, in these changed conditions क्या होगा? Potassium ion replaces the proton ion of what? Of HHB. तो HHB क्या है? Reduced hemoglobin. Okay, so Yes, sir. potassium ion replaces the H plus ion of HHB. This decreases, ये point number 1 है, this decreases क्या? CO2 affinity and promotes dissociation of CO2. तो इस जगह क्या Yes. होगा? आपका CO2 डिसोसिएट हो जाएगा। बट अब पोटेशियम अटैच हुआ, as K plus binds, as K plus binds to the क्या? तो as K plus binds to the hemoglobin, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो अब अगर K प्लस बाइंड किया नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या होगा? बोलिए। इट्स O2 affinity is increased. समझ रहे हो? Its O2 Yes, sir. affinity is increased. Now, okay, तो धीरे धीरे now the oxy hemoglobin dissociation curve starts to क्या? rise. The oxy hemoglobin curve starts to rise. अब ये धीरे धीरे उठना शुरू करेगा, but this phase
is slow and referred to as क्या? Lag phase. ओके, तो समझ रहे हो? तो O2 is attached to the heme at a high PO2 difference. समझ रहे हो? जैसे आपको बिल्कुल भूख नहीं है, ओके, यू आर टोटली नॉट हंग्री, फाइन, एंड सपोज समबडी वांट्स टू गिव यू फूड, तो आप क्या करोगे? तो आप बिल्कुल ही खाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो आप क्या करोगे? विल यू टेक द फूड या आप नखरे No, निकालेंगे? sir. आप नखरे करेंगे, अरे सर अभी खाई Yes, थी, मिठी ऐसा हुआ, वैसे हुआ, तैसा हुआ. तो व्हाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैड समथिंग. सपोज आप चिकन खा रहे हो एंड चिकन थाली मैंने खा रहे हो, मम्मी ने रोटी चिकन होमवर्क टिफिन में भेजा हुआ है, तो जस्ट आप खा रहे हो, मैंने बोला चलो आज मटन खाते हैं, तो आप क्या देखोगे? भाई क्यों आप मेरा फेवर लोगे? वाई शुड यू ईट माई फूड? ऑलरेडी मम्मी ने तो दिया हुआ है ना, एंड चिकन भी दिया हुआ है, उतना बुरा भी फूड नहीं है, आपको वो पसंद भी है, तो इसीलिए व्हाट हैपेंस? तो यू आर ऑलरेडी ऑफ हैविंग गुड फूड, फिर वाई टू चेंज फॉर मटन? बट सपोज आपका जो टिफिन खोलते ही देखा किसी ने आपका टिफिन खा लिया, तो उसमें क्या होगा? आपका एफिनिटी बढ़ेगा, अदरवाइज आपका एफिनिटी तो लो है ना, तो अब आपको फिर yes, मुझे sir. जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा. ओके, तो लाइक दैट. तो इसीलिए जब ऑलरेडी CO2 अटैच्ड है, तो क्यों O2 बाइंड करेगा? इसलिए पहले पहले उसका एफिनिटी घटाओ. तो हमने उसका एफिनिटी घटा दिया, तो जैसे ही H प्लस Yes, को sir. आपने हटाया, एफिनिटी घट गया, तो ऑटोमेटिकली क्या रिलीज हो गया? आपका CO2 आउट हो गया, CO2. CO2 भाग गया. तो जब CO2 भाग गया, अब वो कुछ ना कुछ लोड कर सकता है, तो क्या मिल रहा है ज्यादा? यहाँ ऑक्सीजन. Oxygen. तो जब Oxygen. ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है एंड हम ऑक्सीजन लोड कर सकते हैं, इसलिए एफिनिटी बढ़ाओ. तो एफिनिटी बढ़ाने के लिए हमने ऑलरेडी पोटेशियम ऐड कर दिया है, तो K एज plus. वी Yes, हैव sir. एडेड K प्लस, तो एफिनिटी इज हाई, नीड इज देयर एंड ऑक्सीजन इज देयर, तो सब कुछ सपोर्टिव है. आपका एफिनिटी भी O2 के लिए हाई है, मैंने अभी एफिनिटी बन गया है. दूसरी बात, CO2 जगह नहीं भी है. है, तो आपके पास अभी Yes. कुछ ना कुछ लेने का जगह है. एंड तीसरी Yes, sir. बात कि आपका O2 is ऑक्सीजन available. मिल भी वहां ज्यादा रहा है, तो इसीलिए नाउ वी कैन ग्रास्प इट. तो लाइक दैट, बट दिस फेज इज स्लो. ओके, तो ये स्लो है क्यों? बिकॉज अब किसी को बदलना इतना आसान भी तो नहीं होता है ना. लाइक जैसे आपका मम्मी का प्रति फूड बहुत अच्छा है, यू लाइक हर कुकिंग, बट आई फोर्स यू, प्लीज प्लीज आप एक बार ट्राई तो करो, देखो मैंने लाया, इतना मेहनत से तुम्हारे लिए बना के लाया, जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई. तो जैसे ही आपने ट्राई किया तो टेस्ट बढ़िया लगा. सपोज दो बातें हो सकती हैं, आपको टेस्ट अच्छा लगा, तो आप क्या करेंगे? विल यू कंटिन्यू द चिकन और विल यू गो फॉर द मटन? Go बताइए. for the mutton. गो फॉर द मटन, बिकॉज एक तो सर बना के लाए हैं मेरे, दूसरा पर्सनली ही हैज मेड फॉर मी, तीसरा टेस्टी भी है, चौथा बेटर ऑल्टरनेटिव है. चिकन 200 रुपए किलो, मटन 700 रुपए किलो है, तो अगर हर चीज से सोचा जाए तो मटन का ऑप्शन अच्छा है. बट अगर उसका टेस्ट मिजरेबल हुआ तो Continue with chicken. क्या यार, मैं इतना प्यार से बना के लिया हूँ 700 रुपए वाला मटन, कॉस्ट भी इतना महंगा लिया, तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया, इतना मेहनत से बनाया. ओके, तो वो सब का कोई थोड़ा खातिरदारी ले खातिर मान लेने करोगे के ना लिए नहीं थोड़ा ले करोगे? लेंगे. नहीं, मन वन लेने के लिए नहीं, खाना पड़ेगा. बोलो खाओगे ना नहीं खाओगे? तो एक तरफ बकवास मटन है, दूसरा तरफ एश्योर्ड टेस्टी होम कुक्ड मटन चिकन है, तो क्या करोगे?
बी To the ऑनेस्ट, chicken. गो ऑन, बी ऑनेस्ट, डोंट, मैंने सिर्फ मेरे लिए आपको दिल रखने के लिए बात करने की जरूरत नहीं है, तो यू शुड गो विथ योर टेस्ट। बताइए, सर थोड़ा आपका मटन लेके बाकी अपना फिर चिकन इतना खा लेंगे। भद्र मत बनो, भद्र मत, वो तो खाने लायक नहीं है ना, आपको तो पता चल ही गया, but it is not worth putting in the mouth। इतना खराब है तो सर चिकन के साथ में। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब what decided you will eat or not, cost of mutton chicken नो सर, या उसका टेस्ट? टेस्ट। Taste, sir. तो इसीलिए जो फीडबैक मिला आपका, कि फीडबैक क्या मिला कि बढ़िया टेस्ट है, एक्सीलेंट टेस्ट, तो उससे क्या किया, आपका दूसरा पीस खाने का एफिनिटी बढ़ गया। बट अगर फीडबैक आपको मिलता है कि क्या यार ये क्या खा लिया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए। इवन आप अगर आप देख रहे हो आगे, जैसे बहुत सारे बच्चे इंडियन आइडल में आते हैं, तो वो भी हिमेश रेशमिया लड्डू ऑफर कर रहा है, तो भाई ऑब्वियसली यार इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका दिल टूट जाएगा, फिर वो जिंदगी में सिलेक्ट नहीं करेगा, बहुत चीज आपके मन में चल रहा है, हमें आइडल में आना भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उस पे वो जो लड्डू खिलाता है वो करेले वाला, तो अब जैसे ही आपका मुंह में घुसेगा तो स्माइल निकलेगा ना टीयर्स? बताओ। Smile. हाँ, Sir, smile. with tears. तो मतलब पता चल जाएगा कि नहीं कि आपको बेकार लग रहा है। Yes, sir. अब भले ही चल जाएगा। आइडल वाला बात हो, विल यू ईट इट? तो No, sir. तो नहीं खाओगे, वेरी सिंपल, क्योंकि अरे वो तो निगला, वो तो घुस ही नहीं रहा ना, तो खाओगे कैसे? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए जैसे ही आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग होगा, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ा देता है। तो जैसे, तो दिस इज कॉल्ड हीम हीम इफेक्ट। ओके, जैसे ही आपने दूसरा पीस खाया वो और टेस्टी लगा, तो एफिनिटी और भी और ज्यादा बढ़ गया। बढ़ गया। जैसे तीसरा पीस खाया और भी बढ़िया लगा, तो एफिनिटी उससे भी Further ज्यादा। increases. और बढ़ गया। और बढ़ जाएगा। जैसे ही चौथा पीस खाया आपको और भी बढ़िया लगा, एफिनिटी और भी और बढ़ ज्यादा। जाएगा। क्यों बे, तेरा पेट है ना कोई टंकी है, हैं? एक चार चार पीस खा Yes, के sir. पेट तेरा भर नहीं रहा? बताओ, ये आपका पेट क्या है, एवर इलास्टिक है क्या, जितना पीस दो खाते रहोगे? नहीं सर। तो No, sir. अब इतना बड़ा बड़ा 4 पीस खा लिए, एक प्लेट में 1 पीस आता है, तो आपका पेट और भर रहा है? नो सर। तो No, sir. तो अब नहीं भरेगा। तो जब जगह ही नहीं है, दुनिया का सबसे टेस्टी चीज आप खाओगे? No, नो sir. सर। बस, No, तो sir. तो सारा उल्टी हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने 4 ऑक्सीजन अटैच कर दिया, तो अब ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट बचा ना हीमोग्लोबिन में, नहीं सर, खत्म हो गया। तो कहां से एफिनिटी होगा? तो इसीलिए Yes, sir. अब वो ग्राफ प्लेट्यू कर जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, सो दिस Yes, इज sir. दैट ग्राफ। तो इसीलिए पहला ऑक्सीजन जो अटैच होता है वो आपका बहुत लो प्रेशर में अटैच होता है, बट जैसे ही आपका फर्स्ट बाइंडिंग होगा, ये देख रहे हो, ये 4 साइड, देखो कितना सुंदर डायग्राम इन्होंने बनाया, 4 साइड से Yes, sir. एंड पहला एसोसिएशन हो रहा है। तो पहला एसोसिएशन एट ए डिफरेंस कितना हो रहा है, 20 mm, तो 20. नियरली 20 20. mm Hg का डिफरेंस है। बट अब और 20 mm Hg में 3 बाइंड कर गया, तो व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट एफिनिटी? बढ़ गया सर। बढ़ गया। तो इसलिए इस फेज को ग्राफ का हम क्या बोलेंगे, बोलो? सो दिस स्टेज इज Exponential कॉल्ड phase. व्हाट, लैग फेज। ओके, Yes. इसको हम लोग लैग फेज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एफिनिटी बहुत कम है एंड बहुत बहुत कम है। स्लोली ग्राफ राइज कर रहा है, बट ये Yes. ग्राफ रैपिडली बढ़ रहा है। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल Exponential. फेज Exponential या phase. लॉग Log फेज phase. भी Log बोलेंगे। phase. देखो कहां से
दूसरा स्क्रीन आ गया, ये रहा, क्या आ गया, हटो, डिलीट। हम लोग कहाँ थे, ये रहा। सो इसीलिए एक्चुअली प्लस पॉइंट ऑफ दिस वन नोट इज की उड़ जाने के बाद भी मटेरियल रहता है एंड सो ऑन। तो ये लॉग फेज हो गया। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है बोलिए, तो लेट अस ड्रॉ ए फिर स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन शेयर है, नहीं हुआ। थोड़ा शेयर कर दीजिए क्यों please। नहीं शेयर किया तुमने अभी तक? सॉरी सो सर। अब आप देखिए ये आपका बढ़ रहा है, तो अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज को बढ़ाएं तो ये इधर इधर जाना चाहिए, बट ग्राफ क्या हो यस रहा सर, है, एक फॉल कर रहा है। फॉल कर रहा है। तो दैट इज वाई उसी तरह से अगर इसी लाइन से ऑलवेज व्हेन यू डूइंग ग्राफ वर्क ऑलवेज डू लाइक दिस। अब इसको नीचे ले आइए, तो इसलिए अगर आप नीचे इसको ला रहे हैं तो ये जो फेज क्या है, इट इज ऑल्सो नॉट ओबेइंग द लाइन। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक इन्फ्लेक्शन हुआ है, माने देयर इज अ डिफ्लेक्शन हियर एंड देयर इज अनदर डिफ्लेक्शन हियर। समझ रहे हो? देख रहे हो कि नहीं? तो यहाँ एक डिफ्लेक्शन सर। हुआ है, यहाँ एक डिफ्लेक्शन हुआ है, बट जो नीचे डिफ्लेक्शन है वो रेट को बढ़ा रहा है ना घटा रहा है? बताइए। बढ़ा रहा है, बट इधर रेट को बढ़ा रहा है ना घटा रहा है? घटा रहा है सर। घटा रहा है। तो अगर आप फिजिक्स टर्मिनोलॉजी में कहोगे ये एक्सीलरेशन पॉइंट है एंड ये डी एक्सीलरेशन पॉइंट है। रिटार्डेशन। समझ रहे हो? या यस सर। रिटर्डेशन पॉइंट है जैसे बोल सकते हो। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ एक नेगेटिव सा स्टेज आ रहा है, बट इसके बाद जितना मर्जी PO2 बढ़ाओ, देखो यहाँ से हम यहाँ PO2 बढ़ा रहे हैं, तो जितना मर्जी PO2 बढ़ाओ, इज देयर एनी चेंज इन सैचुरेशन? नो सर। नो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Asymptote. स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी फेज। यहाँ हम Yes, sir. एसिम्पटोट टर्म यूज नहीं करते हैं। ओके, यस सर। एसिम्पटोट पॉपुलेशन बायोलॉजी में यूज होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ कांस्टेंट नहीं होता है, वहाँ बढ़ता कमता बढ़ता कमता बढ़ता कमता रहता है। ओके, रेट बढ़ के यस सर। 90 बढ़ के 100 हो गया, 100 से 10 मर के 90 हो गए, 90 से 90 हो 10 गए। पैदा होके 100 हो गया, 100 से 10 करके, तो ये बेसिकली एक वेवी फेज होता है, इसलिए उसको हम लोग एसिम्पटोट बोलते हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ और जुड़ने वो का हमेशा के लिए चांस ही constant। नहीं है। ओके, यस सर। तो रिलेट, बिकॉज सी आप बोलोगे सर नहीं कमेगा बढ़ेगा कमेगा बढ़ेगा, अरे कमेगा तो ये PO2 भी तो घटाना पड़ेगा कि नहीं? तो जी समझ रहे सर। हो? तो अगर इसको आपको कमाना है तो एट ए लेसर PO2 करना पड़ेगा, नॉट एट 100 PO2। तो 100 PO2 में आपका घटने का सवाल ही नहीं है। अंडरस्टूड? सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो ये आपका यस केस सर। है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको हम लोग हीम हीम इफेक्ट कहते हैं। इसमें लिखना इतना बड़ा गड़बड़ होता है, मैं कहाँ लिखूं इसको, यहीं लिख देता हूँ ना। इसको हम लोग हीम हीम इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हीम हीम इफेक्ट, और इसको पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी बोला जाता है। ओके, या एलोस्टेरिक एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है इसलिए वो सब कुछ बढ़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड हीम हीम इफेक्ट या पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी या पॉजिटिव। क्यों? यहाँ कोऑपरेटिविटी हो रहा है। अगर पहला हीमोग्लोबिन बढ़ने से एफिनिटी बढ़ रहा है, इसलिए दूसरा क्या हो रहा है, वो जल्दी एसोसिएट करना पड़ रहा है। पहले यस मुझे सर। आद्या को मनाने के लिए मटन खा लो 10-15 मिनट रिक्वेस्ट करना पड़ा, अब नहीं करना पड़ रहा है, वो अब अपने आप खा रही है। क्यों अपने आप खा रही है? क्योंकि उसका एफिनिटी एफिनिटी बन बढ़ गया गया। है। तो लाइक यस दैट। सर। तो हर एंगल में मैंने एफिनिटी बढ़ाया, महंगा चीज दिया इसलिए उसको दुख नहीं होगा जाओ मम्मी का छोड़ दिया। सपोज मैं अंडा झोड़ो ऑफर करता, अंडा झोड़ो 10 रुपए का एक अंडा होता है पीस, और मम्मी ने बढ़िया से चिकन 200 रुपए किलो वाला दिया है,
तो मे नॉट बी वो अट्रैक्टिव होता। तो मैंने आपका कॉस्ट एस्पेक्ट रखा, मैंने आपका टेस्ट एस्पेक्ट रखा, एंड टीचर तो है ऑलवेज गुरु देवो भव, तो वो वाला भी एस्पेक्ट रखा। तो हर तरह से आपको लुभाया, तब जाके आपने खाया। बट अब आपको लुभाने का जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज हर चीज तो पॉजिटिव है, एफिनिटी अब बंच। लुभाने का जरूरत क्या है? यस अंडरस्टूड? बट अगर उसी जगह पर अगर मैंने आपको पसंद नहीं आया होता, तो दुनिया भर का चीज देने पे भी आप उसको नहीं खाते, भले ही मैं आपका मार काट दूं, एंड सो ऑन। डू अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ग्राफ रिलेटेड केवीपीआई, आईएमबीओ, ये सब जरूर क्वेश्चंस आएगा। So these are called qualitative topics. तो qualitative topics पे क्वेश्चन जरूर आएगा। सर। हाँ बोलो। सर जहाँ पे ग्राफ फॉल सेकंड टाइम फॉल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे सर? उसको आप डिफ्लेक्शन पॉइंट बोल सकते हो। ओके, Yes, sir. यू कैन कॉल इट डिफ्लेक्शन पॉइंट। हम लोग इसको इनफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, उसको डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। नहीं सर, वो फेज को क्या बोलेंगे? दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डीएक्सिलरेशन, बट जी फिर सर। भी रेट तो ज्यादा है ना। देखो अगर यस हम सर। कंपेयर करेंगे, सपोज यू आर कंपेयरिंग दिस फेज विद द डिफरेंट स्टेजेस, आप इस स्टेज के साथ कंपेयर करो तो क्या होगा? बढ़ रहा है कि नहीं? एंड आप यस सर। अगर आप इस स्टेज के साथ कंपेयर करो तो क्या हो रहा है? घट रहा है, एंड सो ऑन। तो दैट इज वाई। बट ये जो ग्राफ इन लोगों ने बनाया है ना, ये उतना डेंजरस ग्राफ नहीं है। मतलब देखो 3 के बाद एक ही अटैच होना है, सो दैट इज द केस। तो वो अटैचमेंट यहाँ हो जाता है, पर उन्होंने दिखाया काफी देर से है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप इस यस ग्राफ सर। को देखोगे, सो उसका जो अटैचमेंट पॉइंट है वो क्लोज टू दिस होगा, बट ये दिखा रहा है कि अब और अटैच नहीं होगा। तो ये कभी कभी जो आर्टिस्ट है उसका इनसेंसिटिविटी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मीटर, सपोज आप मीटर में सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट करके देखोगे, तो ग्राफ आपका और थोड़ा खड़ा ग्राफ आएगा। मीन्स दिस विल गो लाइक दिस। कहाँ गया लाइन? ये जो ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। तो ये कुछ ज्यादा उसको गिरा दिया है, समझ रहे हो कि नहीं? यस तो सर, आपका टेस्ट अच्छे इधर से दिख फोर्थ नहीं रहा है। अटैच हो जाएगा, तो आपका फोर्थ यस इधर ही सर। अटैच हो जाएगा, इतना दूर पे अटैच नहीं होगा। इसलिए टेक्निकली वो लॉग ही कंटिन्यू कर रहा है, फोर्थ के अटैचमेंट के बाद और ऑप्शन नहीं है, इसलिए फिर इधर से जो है वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा सा ड्राइंग मिस्टेक्स होता है, because the person who is making it is what? He is an artist. He is not, आर्टिस्ट। yes, he is not a scientist or is not a teacher. So he does not need to explain na. Who will explain it? Your teacher will explain it. इसलिए जो आर्टिस्ट जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, और क्या। इसलिए वेरिएशन देखोगे, अगर आप इस ग्राफ को इसके ऊपर चढ़ा के देखोगे, आप देखोगे कि वेरिएशन है। ओके, उसी तरह से अलग अलग ग्राफ में आपको अलग अलग कंसेप्ट दिखेगा। फाइन। तो इसलिए उतना ज्यादा प्लेट्यूइंग नहीं होता है। एक्चुअली ये जो है ना, ये इसको हम इधर लाकर रख सकते हैं। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। So as K plus binds, oxygen affinity is increased. Now oxyhemoglobin dissociation curve starts to rise, but this phase is slow and referred to as lag phase. Oxygen is attached, first oxygen, okay, is attached to the heme at a higher PO2 difference. But this association increases the affinity for the second oxygen. Okay, this oxygen, this association increases affinity for second oxygen. Similarly, for the third and fourth oxygen. Okay, so this phenomena, okay, this phenomena is referred to as heme
effect, or क्या, this phenomena is referred to as him effect or positive cooperativity, okay, of hemoglobin. ठीक है जी। तो इसलिए जब भी, ये आप याद रखना, जब भी आपका मोर देन वन साइट हो तो एफिनिटी वेरी करेगा, समझ रहे हो? सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। यस तो सर, हर एक यहाँ का, से एक हाँ बोलो। क्वेश्चन आया था, हीमोग्लोबिन शोज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर व्हिच ऑक्सीजन, हाँ फर्स्ट तो वो सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ ऑक्सीजन सर? हो जाएगा। तो जब सबसे जी ज्यादा सर, एफिनिटी किसके लिए होगा? फोर्थ। सेम फोर्थ केस ऑक्सीजन आप की। अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समझेंगे, ओके, तो इलेक्ट्रॉन